Hello, all my dear students. Starting with our revision for the next chapter, coming to chapter number 10 of your CA Foundation BCR, that is English, and that chapter is official communication. Now, अगर आपने देखा होगा आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में, तो official communication chapter number 10 is divided into two parts. Part 1 is your formal letter writing, and part 2 is circulars and memos. So coming to official communication, circulars and memos, what do we mean by a circular? So try to recollect with me जो भी आपने पढ़ा होगा, that a circular is nothing but it is usually written by a company to deliver messages, notices, new policies, new rules, etc. to people who are working within an organization, right? So sometimes ये जो circular letter है, it can be written to an external party also. Okay, for example, circular is nothing but something like a notice which is given to people who are working within an organization. Okay, instead of holding a formal meeting, एक formal meeting hold करो या सबको mail भेजो, इससे अच्छा एक circular company के notice board पे छाप दो and people will get to know about it automatically, right? Word of mouth से भी स्प्रेड होता है. सो बेटर वे एक सर्कुलर लिख के नोटिस बोर्ड पे छाप दो. सो दैट इज कॉल्ड एज अ सर्कुलर, राइट? सो सर्कुलर इज समथिंग they are saying that it is written to people within an organization, ये तो है ही, but it is also addressed to external parties which can be a person or an organization. That is, people who are working outside or people who are not a part of your organization, उनको भी कभी कभी हम circulars लिखते हैं. But what is the main intention behind writing a circular? So the main intention behind writing a circular is that you should make sure that आपका जो message है it reaches all your recipients. इसके लिए तो हम circular publish कर रहे हैं, right? Otherwise तो हम mail भेज देते हैं सब लोगों को, okay? But circular अगर आप लिख रहे हो तो it will be your duty, your responsibility to make sure that your circular, your message, your letter reaches all the recipients. फॉर एग्जाम्पल हम सर्कुलर कब लिखते हैं? तो हम सर्कुलर लिखते हैं से इफ यू वांट टू इनवाइट एन एंटायर डिपार्टमेंट फॉर अ मीटिंग. Okay, say if I want to tell all my employees in my department saying that coming Sunday I have a meeting in my office, तो coming Sunday एक important topic पे meeting है जो कि आप सब लोगों को attend करना है. Now individually मैं सबको mail भेजते बैठूँ and those people will then reply to me कि मैम I am sorry I won't be able to come, okay I have my personal commitments, मैं आऊँगा नहीं आऊँगा. इससे अच्छा है एक circular लिख के छोड़ दो, right? So that is an example. One more example is, say for example I want to update the dress policy for the whole office. Okay, I want to say कि आज से ऑफिस में everyone is going to wear formals and come. Okay, casuals कब पहन सकते हैं? से only on Fridays you can wear casuals. So अगर ऐसा कुछ updation about dress policy करना है तो ऐसे चीज़ों के बारे में मैं अगर circulars लिखती हूँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ऐसा माना जाता है. Now, what is the format in which I write my circular? तो देखो circular जो है वो लिखा जाता है एक format में. बेहतर है अगर हम दिमाग में रखते हैं that is there is one particular format for writing a circular, and how can that format be? तो देखो पहले तो when we start writing a circular हम greet करेंगे सारे लोगों को, right? We are writing that circular to the employees of my organization. तो वहाँ पे पहले तो हम greeting डालेंगे कि hi one and all, okay, whatever is your greeting, and then you will go on and you will write down the context of that letter. तो पहले ही पैराग्राफ में आपको ये लिखना है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है. ओके, जैसे लेटर राइटिंग में हम सब्जेक्ट लिखते हैं. ओके, ना ये तो सर्कुलर है, सर्कुलर में तो हम सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, बट यू हैव टू मेक श्योर कि फर्स्ट पैराग्राफ यू हैव टू राइट डाउन व्हाट दिस सर्कुलर इज अबाउट. तो ये आपको फर्स्ट पैराग्राफ में ही लिखना होगा. नेक्स्ट वी कम टू द बॉडी पैराग्राफ, द मेन बॉडी. तो मेन बॉडी में आप क्या लिखोगे? मेन बॉडी में जिस चीज के लिए आप सर्कुलर लिखना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अपडेटिंग अबाउट द ड्रेस पॉलिसी, तो फर्स्ट पैराग्राफ में आप लिखोगे कि दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू अपडेट देम अबाउट द ड्रेस पॉलिसी फ्रॉम दिस कमिंग मंथ. देन मेन बॉडी में आप लिखोगे कि आप क्या चाहते हो उनसे, कि
कि ड्रेसिंग पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, दैट आई वांट ऑल द मेल वर्कर्स, ऑल द मेल एम्प्लॉयज टू वेयर फॉर्मल्स एंड कम jeans and t-shirts will not be allowed. The same will be applicable to females also. Females can wear formals में क्या क्या include होगा, trousers and shirts include होगा. Then you can also wear skirts and then you can also wear dresses, okay, kurtas, and you can wear sarees. तो ये सारी चीज़ें जो आपको मेन कंटेंट में कवर करनी है वो सारा मेन कंटेंट आप लिखोगे आपके मेन बॉडी में. So the supporting points, whatever main information you want to give, you will write that down in the main body. And then lastly you will write down a concluding paragraph. Concluding paragraph में आप क्या बोलोगे? You are going to restate the main point. जो main point आपने बताया था first paragraph में, वही आप point restate करने वाले हो in the last paragraph, and you are going to thank the readers. ओके तो सर्कुलर लिखने का एक बेनिफिट भी होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक सर्कुलर इंस्टेड ऑफ सेंडिंग अ मेल टू ऑल दी एम्प्लॉयज, पता नहीं वो एम्प्लॉय मेल पढ़ेगा, कब रिप्लाई करेगा, इससे अच्छा ये है कि आज इफ आई वांट टू अनाउंस समथिंग अबाउट द ड्रेस पॉलिसी, तो मैं एक सर्कुलर बना के मेरे ऑफिस के, मेरे कंपनी के नोटिस बोर्ड पे लगा देती हूँ. ओके सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन माय एम्प्लॉयज गो फॉर अ ब्रेक एंड दे कम बैक आफ्टर ब्रेक, तो सबकी नज़र पड़ती है उस पर्टिकुलर नोटिस के ऊपर, उस पर्टिकुलर सर्कुलर के ऊपर, एंड वर्ड ऑफ माउथ से, यानी कि आफ्टर द ब्रेक, आफ्टर द लंच टाइमिंग्स एंड ऑल, एम्प्लॉयज एक दूसरों के साथ बातें जब करते हैं तब दे विल नो कि यार हाँ आज नोटिस बोर्ड पे एक सर्कुलर लगा है. सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ सर्कुलर. एक एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको सर्कुलर का. ओके ये एग्जाम्पल जो है, okay, I have picked up this particular thing from the ICAI site. ICAI बहुत बार सर्कुलर्स वगैरह पब्लिश करती है अपने वेबसाइट्स पे. ओके तो सर्कुलर क्यों पब्लिश करती है? नाउ यू बीइंग सीए स्टूडेंट्स, ओके अगर ICAI यू ऑलवेज हैव टू कीप ट्रैक ऑफ द ICAI का ऑफिशियल वेबसाइट. पता नहीं कब क्या सर्कुलर आ जाए, एंड स्पेशली नाउ बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 सिचुएशन. ओके एग्जाम्स का बहुत ज़्यादा कुछ उनका इशूज चल रहा था, वेदर टू पोस्टपोन द एग्जाम्स, वेदर टू conduct it or not, okay, whether to cancel it. So that is why all CA students were very aware about what circulars were published by the institute on the website. तो ये उसी के बारे में एक सर्कुलर इंस्टीट्यूट ने पब्लिश किया था. तो दिस इज जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ फॉर्मेट दैट आई हैव गिवन यू. तो देखो ICAI के पेज पे एक सर्कुलर आपको दिखाई देगा. राइट हैंड साइड में दे हैव गिवन द डेट ऑफ द सर्कुलर. नाउ डेट लिखना जरूरी है. व्हाई? बिकॉज इन अ कंपनी इफ यू आर वर्किंग इन अ कंपनी, तो वहाँ पे बहुत सारे सर्कुलर्स हम इशू करते हैं. तो इन ऑर्डर टू नो कि ये सर्कुलर कब का है, यहाँ पे डेट लिखना जरूरी है. जैसे कि हम देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे इंस्टीट्यूट ने ये सर्कुलर पब्लिश किया था 12 मार्च को. ओके 18 मार्च से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, अराउंड 12 मार्च को इंस्टीट्यूट ने ये सर्कुलर पब्लिश किया है. और लेफ्ट हैंड साइड में उसका रेफरेंस नंबर दिया है. रेफरेंस नंबर इंस्टीट्यूट अगेन इसके लिए देती है बिकॉज एवरी सेकेंड डे वो लोग इंस्टीट्यूट सर्कुलर्स पब्लिश करते रहते हैं. तो इन ऑर्डर टू नो कि ये सर्कुलर कब पब्लिश किया है, कौन से नंबर का सर्कुलर है, इसके लिए वो रेफरेंस नंबर देती है. बट दिस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी गिवन बाई अस इन दी एग्जाम्स इफ दे आस्क अस अ क्वेश्चन ऑन सर्कुलर. तो देखो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने अराउंड 2 to 4 पैराग्राफ्स में अपने सर्कुलर में लिखा है वट एवर दे वॉन्ट टू कन्वे. ओके तो फर्स्ट पैराग्राफ में इंस्टीट्यूट क्या लिखती है? दे आर सेइंग दैट this has reference to the advisory regional council and branches issued on 11th of March 2020. What is this circular regarding? It is regarding avoiding large gathering as precautionary measure to prevent any spread of COVID-19. ओके तो ये तब की बात है जब पब्लिक गैदरिंग्स बैन नहीं हुआ था. ओके वंस द लॉकडाउन स्टार्टेड, पब्लिक गैदरिंग्स, शादी एंड ऑल दीज थिंग्स ये तो कैंसिल हो ही गए. बट यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने ये सर्कुलर पब्लिश किया था कि अगर कोई पब्लिक गैदरिंग किसी भी स्टेट में, किसी भी सिटी में ICAI का कोई भी ब्रांच कर रहा है तो ये पब्लिक गैदरिंग हम लोगों को अवॉइड करना है. एंड देन दे सेकंड थर्ड पैराग्राफ में दे हैव एक्सप्लेन कि ऐसा क्यों करना है एंड ऑल दीज थिंग्स. एंड लास्ट पैराग्राफ देखो, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है, सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ में कॉन्टेक्स्ट आएगा. तो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में द इंस्टीट्यूट हैज गिवन यू द कॉन्टेक्स्ट अवॉइडिंग लार्ज गैदरिंग्स. देन सेकेंड एंड थर्ड पैराग्राफ मेन बॉडी में आपका जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो आएगा. एंड द लास्ट पैराग्राफ यू आर गोइंग टू रीस्टेट द मेन पॉइंट एंड थैंक द रीडर. तो देखो यहाँ पे इंस्टीट्यूट का जो सर्कुलर है, यहाँ पे you are requested to kindly ensure compliance to the above directions of the council. तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है? nothing but they are sort of restating their main point.
So this was an example of a circular. So I hope you know what circular is. Okay, moving on to the next part of this particular chapter, official communication, that is a memo. ओके तो यहाँ पे हमको ये पढ़ना होगा कि एक मेमो क्या होता है, हाउ इज अ मेमो डिफरेंट फ्रॉम अ सर्कुलर. ओके, अगर हम कंपनी में या अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में चाहे तो एक सर्कुलर इशू कर सकते हैं, नहीं तो एक मेमो भी इशू कर सकते हैं. बट व्हाट डू यू मीन बाय अ मेमो, सबसे पहले ये देख लेते हैं. नाउ the word memo has been derived from the word memorandum, and memorandum का मतलब होता है a reminder, किसी को कुछ याद दिलाना is called as a memo. Now, it is frequently used to inform people within the organization about policies, procedures, etc. तो अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमने कोई पॉलिसी अपडेट किया है, कोई प्रोसीजर अपडेट किया है, उसके बारे में अगर हमको कन्वे करना है हमारे एम्प्लॉयज से, तो हम मेमो यूज करते हैं. तो देखना, मेमो इज यूज टू इन्फॉर्म द पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. जबकि हमने सर्कुलर पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि इट इज यूज फॉर इन्फॉर्मिंग पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो देखो, अ मेमो इज यूजुअली सेंट एज एन ईमेल. अच्छा, मेमो तो हम बना लेंगे, बट मेमो को हम डिलीवर कैसे करेंगे हमारे एम्प्लॉयज को या हमारे रेसिपिएंट्स को? तो यूजुअली इट हैज टू बी रिटन बाय एन ईमेल, and it can replace the need to have an entire meeting about a small subject which could be explained over a memo. तो एक बहुत सा छोटा सा सब्जेक्ट है, ओके, एंड इंस्टेड ऑफ कॉलिंग फॉर अ मीटिंग, सारे एम्प्लॉयज को बुलाओ मीटिंग के लिए एंड आई हैव टू वेस्ट 2 to 3 hours ऑन दैट मीटिंग, तो इससे अच्छा अगर एक छोटा सा टॉपिक है तो मैं एक मेमो लिख के मेरे एम्प्लॉयज को या जो भी रेसिपिएंट्स है उनको मैं ईमेल के द्वारा भेज सकती हूँ एंड द मैटर इज क्लोज्ड, राइट. तो देखो यहाँ पे आई हैव पुट अप अ फॉर्मेट फॉर अ मेमोरेंडम. तो मेमोरेंडम का फॉर्मेट कैसे होना चाहिए? सो फर्स्ट वी हैव, सबसे ऊपर हमने लिखा है मेमोरेंडम और उसके नीचे हमने लिखा है टू. ओके, सो टू जिसको भी आप एड्रेस करना चाहते हो ये मेमोरेंडम, वहाँ पे उसका नाम आएगा. देन यू विल हैव फ्रॉम. ओके, सो वट एवर इज योर नेम, ओके, जो भी लिख रहा है उसका द सेंडर्स नेम विल बी रिटन ओवर हियर. उसके नीचे आप डेट लिखोगे एंड उसके नीचे आप लिखोगे सब्जेक्ट. दिस इज समथिंग सिमिलर टू अ फॉर्मल लेटर ओनली, ओके, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है मैं आपको बताती हूँ. तो पहले आप देखना, फर्स्ट यू विल राइट टू, देन यू विल राइट फ्रॉम, उसके नीचे डेट लिखोगे और उसके नीचे सब्जेक्ट लिखोगे. नीडलेस टू से सब्जेक्ट आप किसी भी चीज में लिख रहे हो, वेदर यू आर राइटिंग इट इन फॉर्मल लेटर्स, वेदर यू आर राइटिंग इट इन ईमेल्स, वेदर यू आर राइटिंग इट इन मेमोज, इट हैज टू बी अ वन लाइनर. ओके, लाइन में और सेंटेंस में डिफरेंस होता है. एक सेंटेंस अगर मैं लिख रही हूँ तो वो 3 से 4 लाइंस में भी एक सेंटेंस में लिख सकती हूँ, बट सब्जेक्ट आप किसी भी चीज का लिखो, इट ऑलवेज हैज टू बी अ वन लाइनर. एक लाइन में मिनिमम, बेयर मिनिमम वर्ड्स में आपको लिखना है आपका सब्जेक्ट एंड देन यू विल राइट डाउन द बॉडी ऑफ द मेमो कंटेनिंग द डिटेल्स. तो यहाँ पे जो भी आपका बॉडी है मेमो का, जो भी आपका मेन कंटेंट है, यहाँ पे आप मेमोरेंडम में उसको लिखोगे. नाउ एग्जाम्पल क्या है, मैं मेमो कब लिख सकती हूँ? I told you it has to be written within an organization, right? So examples, for example है, an IT guy is sending reminder that all the password needs to be updated every 60 days. For example एक IT कंपनी है और वहाँ पे एक IT कंपनी का जो मैनेजर बैठा है वो सारे एम्प्लॉयज़ को एक मेमो के थ्रू ही सेंडिंग अ मैसेज सेइंग दैट आपकी जो भी पासवर्ड्स है वो 60 डेज में आपको क्या करना है, अपडेट करना है. इसके लिए देयर इज नो नीड टू होल्ड अ मीटिंग फॉर दिस. मैं एक स्ट्रेट अवे मेमो लिख सकती हूँ एंड आई कैन सेंड इट थ्रू email. Next, a CEO explaining a new bonus policy. For example, मेरे कंपनी में अगर मुझे न्यू बोनस पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना है, so for implementing a new bonus policy, instead of calling a meeting of all the employees and explaining things to them, मुझे उनको बस ये बोलना है कि इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर से मेरा जो बोनस होगा that is going to be 10% of your salary or 5% of your salary. Okay, so whatever it is, तो मैं उनको मेमो के थ्रू लिख सकती हूँ, वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा. अनदर एग्जाम्पल इज अ वाइस प्रेसिडेंट टेलिंग देयर डिविजन दैट दे आर फॉलोइंग बिहाइंड फॉर द ईयर एंड दे नीड टू मीट सर्टन नंबर्स. तो अगर मुझे किसी मैनेजर को अपने एम्प्लॉयज़ को ये कम्युनिकेट करना है दैट यू आर लैगिंग बिहाइंड इन योर वर्क एंड यू नीड टू मीट सर्टन टारगेट्स, तो इसके लिए भी एक मेमो लिखना ज़्यादा उचित होगा. ओके, नाउ हाउ कैन यू मेक योर मेमो
अ ग्रेट वन. ओके, एक मेमो अच्छा होना चाहिए ऑब्वियसली, एंड स्पेशली व्हेन यू आर राइटिंग इट इन योर एग्जाम्स. ICAI ये देखने वाली है कि आप किस तरह से आपके मेमो को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हो. सो सम टिप्स एंड सम सजेशंस फॉर दैट आई हैव. ओके, तो पहला बात, you have to you have to remind the reader of what action has to be taken in the very first section. तो पहला ही लाइन जो आप लिखोगे, you have to write down. देखो, मेमो मतलब एक रिमाइंडर होता है, तो पहले ही लाइन में आप एक रिमाइंडर लिखोगे कि what action has to be taken. तो जो भी action has to be taken, ओके, उसके बारे में आप पहला लाइन लिखोगे. ओके, नेक्स्ट यू हैव टू मेक श्योर कि मेमो जो आप लिखते हो वहाँ पे आपका जो मेन मैसेज है दैट हैज़ टू बी सुपर शॉर्ट, दैट हैज़ टू बी वेरी क्रिस्प, दैट हैज़ टू बी टू द पॉइंट. आपको मेमो टू द पॉइंट लिखना है. एंड लास्ट यू हैव टू राइट अ रिमाइंडर ऑफ व्हाट एक्शन हैज़ टू बी टेकन. ओके, तो पहले आप एक रिमाइंडर लिख देते हो, उसके बाद यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी आपका मैसेज है वो बहुत शॉर्ट, बहुत क्रिस्प, बहुत ब्रीफ हो, एंड देन यू विल राइट अ रिमाइंडर ऑफ व्हाट एक्शन हैज टू बी टेकन. नाउ before sending a memo you have to go through certain guidelines. So here is a list of quick guidelines that I have given. First one, you have to make sure that the action you are requesting for is worthy of an entire memo. Okay, क्योंकि आप एक मेमो लिख रहे हो, आपको ये देखना है that आप जिस चीज के लिए मेमो लिख रहे हो क्या वो मेमो लिखने के लायक है भी या नहीं. Yes, then give one sentence explanation of the memo in the header. Okay, जो header है, जो subject है, वो one sentence क्या, मैं तो बोलती हूँ one line में होना चाहिए. आप one sentence, I told you one sentence can go into 3 to 4 lines also. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेमो छोटा है बट आपका टाइटल, आपका सब्जेक्ट ही बड़ा है, राइट. सो इट मेक श्योर इट इज अ one liner. Okay, then you have to get to the point straight away. डोंट बीट अराउंड द बुश. यहाँ वहाँ की बातें नहीं करना है, स्ट्रेट अवे पॉइंट पे आना है. जो भी आपको कन्वे करना है कम से कम लाइंस में, कम से कम वर्ड्स में आपको उसको कन्वे करना है. दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ अ मेमो, यू कैन से. एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द मेमो शुड से एग्जैक्टली व्हाट एक्शन यू वांट पीपल टू टेक. तो लास्ट पार्ट में व्हाट एक्शन आर यू डिमांडिंग, ओके, ये यहाँ पे आप लास्ट पार्ट में मेंशन करोगे. Then I have given you a sample memo. तो आप स्लाइड पे देख सकते हो, मैंने एक सैम्पल मेमो देखा है, एक सैम्पल मेमो लिखा है. व्हाट इज दैट सैम्पल मेमो? इट टॉक्स अबाउट अप्रेजल ऑफ कैशियर्स डिसमिसल. सबसे पहले ये एक इंटर ऑफिस मेमो है, यानी कि विद इन द सेम ऑफिस ये मेमो लिखा गया है. दैट इज व्हाट मेमो इज रिटन, राइट. इंटर ऑफिस ही लिखा जाता है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही एक मेमो लिखा जाता है. तो सबसे ऊपर हमने हमारा एड्रेस लिखा है, ओके, और उसके नीचे हमने एक इंटर ऑफिस मेमो ऐसा टाइटल दिया है. Then you have written date to all the branch managers. कौन लिख रहा है? The general manager. So general manager of this Samriddhi Bank is writing this memo to all the managers regarding what? Subject क्या है? Appraisal of cashier's dismissal. Appraisal का मतलब है assessment. Appraisal at work. Whenever I say that appraisal at work हो रहा है, इसका मतलब आपका वर्क जो है उसका इवैल्यूएशन हो रहा है, ओके, उसका असेसमेंट हो रहा है. यानी कि somebody is analyzing your performance at your workplace, that is called as appraisal. ओके, तो यहाँ पे किस चीज का अप्रेजल हो रहा है? कैशियर्स डिसमिसल. तो बैंक का जो कैशियर है, ओके, उसको डिसमिस किया गया है और उसके बारे में ये मेमो है. तो ये जनरल मैनेजर उसके सारे ब्रांच मैनेजर्स को ये मेमो लिख रहा है, सेइंग दैट this is to inform you that Mr. XYZ, the cashier of Samriddhi Bank, Vilasnagar branch, has been suspended on charge of misappropriation of funds. Misappropriation of funds means misappropriation of funds, इसका मतलब होता है funds की हेरा फेरी. So this particular cashier has been suspended on account of misappropriation of funds. So this particular general manager has requested all the other branch managers to look into the matter, right. So the bank authorities, they are saying that अगर आप इनके साथ कोई transaction करते हो, so the bank authorities will not be responsible for any mishap. So whatever transactions you want to do with this particular manager, okay, do it at your will. Okay, so now ending this particular revision, एक बार देख लेते हैं हमने जो circulars और memos पढ़ा है, what is the difference between a circular and a memo.
ओके तो जैसे कि मैंने कहा है सर्कुलर जो है इट इज़ रिटन फॉर लार्ज ऑडियंसेस। ओके इमेजिन करो अगर मैं सर्कुलर नोटिस बोर्ड पे लगा रही हूँ तो वहाँ पे लार्ज ऑडियंस इज गोइंग टू कम एंड दे आर गोइंग टू रीड दैट। जो भी सारे एम्प्लॉयज़ है दे आर गोइंग टू कम एंड दे आर गोइंग टू रीड दैट ऑन द नोटिस बोर्ड। वेर एज ऑफिशियल मेमो का ऐसा नहीं होता है। ऑफिशियल मेमो जो होता है दैट इज मेंट फॉर अ सिलेक्टेड ऑडियंस। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में जनरल मैनेजर हैड सेंड दैट ऑफिशियल मेमो ओनली टू दी ब्रांच respective branch managers. Then सर्कुलर जो है इट सर्व्स एज अ मीडियम फॉर जनरल अनाउंसमेंट। अगर जनरली कोई भी चीज़ अनाउंस करनी है, फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू अपडेट अबाउट द ड्रेसिंग पॉलिसी इन माय पर्टिकुलर ऑफिस, तो यहाँ पे मैं एक सर्कुलर लिखती हूँ। वेर एज मेमो जो है इट इज़ रिटन ओनली फॉर अ लिमिटेड सब्जेक्ट मैटर। ओके हर चीज़ के लिए मैं एक मेमो नहीं लिख सकती हूँ। ओके सो दैट इज़ वाई आई सेड यू हैव टू मेक श्योर वेदर द थिंग दैट यू आर राइटिंग अ मेमो अबाउट इज वर्दी इनफ ऑफ राइटिंग अ मेमो। And the last difference is that circular जो है it may approach different audience concerning the subject matter. That is basically circulars can be written within the organization and also to people outside the organization. But अगर मैं memo की बात करती हूँ तो memo is only written to people. It is only addressed to people within your organization. So this is the basic difference between a circular and a memo. So I hope you have understood this well. So if you have any doubts you can put it down in the comment section. So I urge you all to practice certain circulars and memos before you go in for your main exams. So thank you so much for your patient hearing.